Hello students, welcome to the class. Students, in the last class I had started the chapter functions. In that we saw what is a function, how we can define a function, what are the different types of functions available in Python. Then we have seen the topic flow of execution in a function call. So today I am going to continue with this chapter only. First we will see about parameters, passing parameters. पिछले क्लास में हमने देखा था पैरामीटर्स जब भी एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं वॉट एवर यू गिव विद इन पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर्स. सो इन पाइथन व्हेन यू कॉल दैट फंक्शन, जब एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं उसके बाद जब फंक्शन को कॉल किया जाता है यू हैव टू पास वैल्यूज़ फॉर द पैरामीटर्स. यानी जो पैरामीटर आप डिफाइन करते हैं उसके लिए आपको वैल्यू पास करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट. सो while you pass the argument you have to see how many parameters are there. It should be matched with the number of argument that is passed. क्लियर? यानी जब एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं जितना पैरामीटर्स आप देते हैं तो जब फंक्शन को कॉल किया जाता है आपको उतना आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, दैट मीन्स उतना वैल्यू आपको पास करना होता है. सो इन पाइथन दिस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. So students, the first one is positional or required argument. What do you mean by positional or required argument? Before seeing the definition, let's see the example. Suppose the function is interest. The name of the function is interest. Here the parameters are, this function is going to calculate simple interest. So you need principal, then next you need time, then rate of interest. Suppose this is the function. In order to define a function you have to first write the keyword def. Then what is the function name here? Interest. What are the parameters here? You can see there are total 3 parameters. The first one is principal amount, second is time, that is duration, and third one is rate. So this is the function. Here when you call this function, जब इस function को हम call करेंगे, for example main program में suppose if I give a variable name that is SI, simple interest, I am calling the function interest. How many values you have to give, how many arguments you have to pass? आपको पता है 3 parameters है, that means you have to pass 3 arguments. The first one is principal. Suppose if I give 6200 and I give 2 comma, if I write like this, by calling the function interest I am giving 3 values. These 3 values are called as argument. 6200, 2 and 0.20 ये आर्ग्यूमेंट है. यहाँ पर देखिए जब आप इस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं और आप वैल्यूज़ को पास करते हैं for what? For these parameters principal, time and rate. What will happen? The first value will be taken by the first parameter, that is principal, and the second value will be taken by the second parameter, time, and the third value will be taken by the third parameter. That means the position is fixed. Order जो होता है जिस सीक्वेंस को फॉलो करके वैल्यू पास होता है इट इज़ फिक्स्ड पोजीशन वाइज. जो पहला पैरामीटर होगा इट विल टेक द फर्स्ट वैल्यू, वो पोजीशन वाइज है. एंड वाई इट इज कॉल्ड एज required or mandatory, it is also called as mandatory argument. That means how many parameters are there, exactly that number of arguments you have to pass. Clear? यानी जितने पैरामीटर्स होगा उतना आपको वैल्यूज़ देना होगा. अगर यहाँ पर 4 पैरामीटर्स होता देन आपको जब फंक्शन को कॉल करते हैं देन इन दैट केस यू हैव टू गिव 4 आर्ग्यूमेंट. दैट मीन्स number of parameters should be matched with number of arguments या number of values that you are passing. This type of argument is called as positional or required argument. Also it is called as mandatory argument. Hope it is clear. Students, the second one is default argument. यहाँ पर देखिए 3 पैरामीटर्स था. जब आपने फंक्शन को जब कॉल किया देन इन दैट केस यू आर पासिंग 3 आर्ग्यूमेंट्स. सपोज इफ द यूज़र गिव्स ओनली 2 वैल्यूज़, जब फंक्शन को कॉल करते हैं if I write like this, SI equals to interest, suppose if the user gives
5200, 2. देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहा है। पैरामीटर्स 3 है लेकिन आर्ग्यूमेंट आपने कितना पास किया है, केवल 2 आर्ग्यूमेंट पास किया है। सो व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट वैल्यू 5200 विल बी टेकन बाय प्रिंसिपल, दैट इज पास टू प्रिंसिपल। सेकेंड वन इज 2, दैट विल बी पास टू टाइम, लेकिन रेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। इन दैट केस इफ द यूज़र इज नॉट गिविंग एनी वैल्यू, जब आप इस तरह केस में जब एक फंक्शन को कॉल करते हैं और कोई भी आर्ग्यूमेंट मिसिंग होता है, इन दैट केस यू कैन डिफाइन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आप जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस टाइम पे आप किसी भी आर्ग्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन, इफ़ यू आर असाइनिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इफ़ यू आर नॉट पासिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर दैट पैरामीटर जिसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया गया है, then in that case what will happen, it will take the default value. We'll see one example. Suppose here rate is not given, here rate is not passed, so I want to give a default value for rate. हम मान के चलते हैं normally rate of interest 10% होता है, so हम default value set करना चाहते हैं rate equals to 10%. So in that case whatever default value you want to give, इट शुड बी गिवन इन द फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन के हेडर में आपको देना होता है। सो आई हैव टू राइट लाइक दिस, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं वहीं पर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना होता है। यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन से पैरामीटर को दिया है, रेट, दैट इज़ 10%, दैट इज़ 0.10. सो इन दैट केस इफ़ यू राइट लाइक दिस एंड वी आर कॉलिंग द फंक्शन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर देखिए 1 आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, मैच नहीं हो रहा है, 3rd आर्ग्यूमेंट इज missing. So what will happen, it will take the default value that is 0.10 in the rate parameter. Clear? So this is the default argument. So default का use क्या होता है, जब आप value pass नहीं करते हैं तो जो भी function definition में आप default value set करते हैं वो value automatically ले लिया जाता है. Clear? But if the user gives a value, suppose we are calling the function interest 6800, 2. यहाँ पर देखिए फंक्शन डेफिनेशन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया गया है रेट का, लेकिन जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है अगेन यू आर पासिंग द वैल्यूज़ फॉर रेट। रेट के लिए देखिए फिर से वैल्यू दिया गया है 0.20, देन विच वैल्यू विल बी टेकन, वेदर 0.10 विल बी टेकन और 0.20. तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पास करते हैं, जब आप आर्ग्यूमेंट देते हैं तब क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं लिया जाएगा, दैट मीन्स रेट 0.20 माना जाएगा, दैट इज़ 20%. सो जब आप वैल्यू पास करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लिया जाता है, एंड इफ़ यू आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू फॉर एनी पैरामीटर देन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू दैट इज सेट फॉर दैट पैरामीटर विल बी टेकन. So this is all about default argument. Students, see here the third type of argument is keyword or named argument. यहाँ पर देखिए 3 पैरामीटर्स था, जब भी हमने फंक्शन को कॉल किया था हम वही सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, सेम ऑर्डर इज फॉलोड, दैट मीन्स वी आर नॉट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर. सी हियर वी आर कॉलिंग द फंक्शन, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स. तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पैरामीटर के लिए फर्स्ट वैल्यू लिया जाता है, सेकेंड के लिए सेकेंड एंड थर्ड पैरामीटर्स के लिए थर्ड आर्ग्यूमेंट. दैट मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग द ऑर्डर, बट इन पाइथन इट अलाउज द यूज़र टू चेंज द ऑर्डर. अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जब आप वैल्यू पास करते हैं, अगर आप टाइम पहले देना चाहते हैं या फिर आप रेट पहले स्पेसिफाई करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ द नेम. इसीलिए इसको कहा जाता है कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट. यानी अगर आप ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, जिस सीक्वेंस में पैरामीटर डिफाइन किया गया है, जब वैल्यू को पास करते हैं अगर आप उसी सीक्वेंस में नहीं देना चाहते हैं, यू वांट टू चेंज द ऑर्डर व्हाइल पासिंग आर्ग्यूमेंट, इन दैट केस यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम. स्टूडेंट्स, सी हियर these are the 2 examples. In the first one you can see the first argument is passed, that is 5300 with the name प्रिंसिपल. दैट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला भी प्रिंसिपल था, आपने वैल्यू पास किया प्रिंसिपल के लिए 5300. देन द सेकेंड आर्ग्यूमेंट यू सी, व्हाट इज द सेकेंड पैरामीटर, दैट इज टाइम. लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो टाइम नहीं है. कौन सा आर्ग्यूमेंट है, रेट. दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द सीक्वेंस, सेकेंड और थर्ड को आप इंटरचेंज कर रहे हैं. So in that case, if you want to change the order while passing argument, you have to specify the name first.
जिस पैरामीटर के लिए आप वैल्यू पास कर रहे हैं ऑर्डर चेंज करते वक्त, वो पैरामीटर का आपको पहले नाम देना होता है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू, देन ओनली यू कैन चेंज द सीक्वेंस। सो यहाँ पर मैंने रेट को पहले दिया है, तो रेट इक्वल्स टू 0.20 और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 3। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी द फर्स्ट पैरामीटर इज टेकन लास्ट। फर्स्ट पैरामीटर आपका यहाँ पर लास्ट हो गया है, तो यहाँ पर कौन सा आर्ग्यूमेंट सबसे पहले कॉल किया गया है? टाइम। टाइम के बाद रेट लिया गया है। यू कैन सी सेकेंड वाला जो पैरामीटर था वो यहाँ पर आपने वैल्यू पास करते वक्त वहाँ पर उसका पोजीशन चेंज कर दिया है, फर्स्ट कर दिया है। देन रेट यहाँ पर थर्ड पैरामीटर था, यहाँ पर आप जो वैल्यू कॉल कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इन दैट केस यू आर गिविंग एट सेकेंड पोजिशन एंड द फर्स्ट पैरामीटर एट लास्ट। Clear? So in this way you can change the order of the argument. So in that case you have to specify the name of the parameter. पैरामीटर का नाम ये इंपॉर्टेंट है, आपको पैरामीटर नेम देना है, देन आप इक्वल्स टू लिखकर जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। होप इट इज क्लियर। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज पासिंग पैरामीटर्स, पोजिशनल रिक्वायर्ड और मैंडेटरी, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड और named argument. Students, the 3 types of argument that we have seen, it can be mixed. आप mix करके भी दे सकते हैं. That means if you want to use positional argument as well as default argument or the third one that is keyword argument, तीनों टाइप के जो आर्ग्यूमेंट हैं वो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं एट ए टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूल्स क्या होता है? सबसे पहले आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देना होता है, उसके बाद आप जो भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है वो आपको देना होगा, उसके बाद लास्ट में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आता है। सो इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप फंक्शन कॉल करते वक्त एट ए टाइम 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप ऑफ वेरिएबल्स? नॉर्मली जो भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उसका 2 तरह का स्कोप होता है। स्कोप मीन्स इन विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इट इज़ लीगल और एक्सेसिबल, यानी जो भी वेरिएबल या फिर नेम है, इन विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विद इन विच इट इज़ लीगल एंड एक्सेसिबल, दैट इज़ कॉल्ड एज स्कोप। यानी जिस प्रोग्राम में आप फंक्शन के अंदर या फिर प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होता है, इन विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इट कैन बी एक्सेस, दैट इज डिफाइंड बाय द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कोप, वन इज ग्लोबल स्कोप and second one is local scope. What do you mean by global scope? जो भी वेरिएबल्स, जो भी नेम्स आप मेन प्रोग्राम के अंदर देते हैं, दैट मीन्स वॉट एवर नेम्स और वेरिएबल्स यू गिव इन द मेन प्रोग्राम, मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मेन segment of the program, that will have the global scope. That means that variable, that names can be accessed throughout the program. It can be accessed by any function or any blocks. लेकिन जो लोकल स्कोप होगा वो वेरिएबल्स क्या होता है, किसी फंक्शन के अंदर, फंक्शन बॉडी में जो हम डिफाइन करते हैं, वॉट एवर वेरिएबल्स और नेम्स दैट यू गिव विद इन अ फंक्शन, सो दैट विल बी एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन ओनली, दैट विल हैव लोकल स्कोप। दैट मीन्स ग्लोबल में क्या होता है, जो भी वेरिएबल देते हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम इट कैन बी एक्सेस्ड, इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इट कैन बी एक्सेस्ड, बट इन लोकल स्कोप इफ़ यू आर डिफाइनिंग विद इन अ फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल्स देते हैं या फिर नेम देते हैं, दैट उसका जो एक्सेसिबिलिटी होता है वो उसी फंक्शन के अंदर होता है। यू कैनॉट एक्सेस दैट वेरिएबल और नेम आउटसाइड दैट function, so that will have local scope. So it is clear. So now we'll see with the help of one example what is global and what is local. Students, see here, this is an example. एक प्रोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर हम समझेंगे ग्लोबल स्कोप कौन सा है, लोकल स्कोप कौन सा है। दैट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल्स में कौन से वेरिएबल्स आते हैं और लोकल वेरिएबल्स में व्हाट आर द वेरिएबल्स अवेलेबल। यू कैन सी एज आई टोल्ड बिफोर, ग्लोबल वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड और डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेन सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम कहाँ पर है, देखिए ये आपका फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। फंक्शन के ऊपर जो आप देते हैं एट द बिगनिंग, ये भी आपका ग्लोबल होगा। दैट मीन्स द वेरिएबल एक्स इज ग्लोबल। दैट मीन्स आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, यानी प्रोग्राम के बिगनिंग में अगर आप कोई वेरिएबल्स देते हैं x इक्वल्स टू 5 या कोई भी और वेरिएबल देते हैं, दैट विल बी ग्लोबल। देन दिस इज द फंक्शन,
इसके बाद ग्लोबल कौन सा होगा, इन द मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, ये आपका मेन सेगमेंट है, यहाँ पर है वाई जेड, वाई इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर, सो वाई इज ऑल्सो ए ग्लोबल वेरिएबल. देन द नेक्स्ट इज जेड. That means in this program there are 3 global variables. First one is x which is declared at the top, function के ऊपर दिया हुआ है. Then remaining 2 global variables y and z जो कि main segment of the program में दिया हुआ है. Clear? So these 3 variables x, y, z can be accessed throughout the program. किसी भी part of the program से इस variables को access किया जा सकता है. It is legal and accessible. But इन द केस ऑफ लोकल मैंने बताया था, जो आप एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन, विद इन अ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज लोकल. सो यहाँ पर देखिए फंक्शन कौन सा है, FUNC, दिस इज द फंक्शन. यहाँ पर देखिए पैरामीटर्स कौन सा है, A. क्लियर? देन यहाँ पर देखिए B इक्वल्स टू A प्लस B. तो यहाँ पर जो A और B है, A एंड B, द वेरिएबल्स A एंड B, इसका एक्सेसिबिलिटी क्या होगा, इसी फंक्शन के अंदर. दैट मीन्स A एंड B कैन बी यूज्ड विद इन दिस फंक्शन ओनली. इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय मेन सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम बिकॉज इट इज लोकल. लोकल मतलब क्या, उसका एक्सेसिबिलिटी उसी फंक्शन के अंदर होगा जिसके अंदर वो डिक्लेयर किया गया है या यूज किया गया है. क्लियर? सो दिस इज all about global and local variable. Students, in order to understand global and local scope, we are going to see 3 different cases. In the first case one, variable in global scope but not in local scope. That means कोई variable होगा जो globally define किया हुआ है, locally नहीं दिया हुआ है. Then in that case what will happen? You can see the example. The function is calcsum. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर local variables कौन कौन सा है, x, y and s. यहाँ पर s, x, y ये आपका local variables है. Then यहाँ पर देखिए प्रिंट में num1 यहाँ पर देखिए ये फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर का ये पैरामीटर नहीं है. दैट मीन्स यू कैन सी num1 कहाँ पर है, मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम. दैट मीन्स मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम में आप जो भी वेरिएबल्स देते हैं वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल. तो यहाँ पर देखिए num1 इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, इट इज़ ए ग्लोबल वेरिएबल. बाकी स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा हुआ है. इसी तरह आप num2 भी ले सकते हैं. सो ग्लोबल वेरिएबल num1, it is declared globally but it is used within the function calcsum. यहाँ पर देखिए calcsum के अंदर जो num1 दिया हुआ है वो ये ग्लोबल वेरिएबल num1 है. दैट मीन्स विद इन दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन का पार्ट नहीं है. इट इज़ नॉट कमिंग इनसाइड दिस, इट इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ calcsum. इट इज़ द वैल्यू दैट विल बी टेकन फ्रॉम दिस ग्लोबल वेरिएबल num1. So this is the case one, variable in global scope but not in local scope. लोकल में यहाँ पर ये num1 डिफाइन नहीं किया हुआ है. Clear? See the second case, variable neither in local scope nor in global. अगर आप कोई वेरिएबल देते हैं जो कि ग्लोबली भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं है, ना ही वो लोकल वेरिएबल है. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सी द एग्जांपल. सपोज द फंक्शन इज ग्रीट. ग्रीट फंक्शन है जहाँ पर सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट है. व्हाट इज देयर, हेलो. आफ्टर दैट यू सी वन वेरिएबल इज देयर, दैट इज नेम. यहाँ पर देखिए कहीं पे भी नेम पैरामीटर डिफाइन नहीं किया है, ना ही ये ग्लोबल एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है. क्योंकि यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल करते हैं डायरेक्टली फंक्शन नेम ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस दिया हुआ है. दैट मीन दिस इज द मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम. मेन सेगमेंट में केवल एक स्टेटमेंट है जो कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ग्रीट. क्लियर? सो जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर देखिए कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है क्योंकि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. पिछले क्लास में मैंने बताया था जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, दैट मीन्स नो पैरामीटर्स आर देयर इन द फंक्शन. इन दैट केस यू नो नीड टू गिव द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द पैरामीटर, क्योंकि जब पैरामीटर नहीं होगा तो आपको आर्ग्यूमेंट भी देने की जरूरत नहीं है. सो पैरामीटर नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग. No return statement is there, just one print statement is there. So here if you are using name, what will happen, it will show error. क्यों एरर शो होगा प्रोग्राम में, क्योंकि ये ग्लोबली भी डिफाइन नहीं किया है, ग्लोबल वेरिएबल नेम नहीं है, ना ही लोकली भी यहाँ पर ग्रीट फंक्शन के अंदर कोई नेम वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है. दैट मीन्स वेरिएबल नेदर इन लोकल स्कोप नॉर इन ग्लोबल स्कोप. तो इस तरह केसेस में अगर आप कोई वेरिएबल दे देते हैं जो कि ग्लोबली भी डिफाइन नहीं किया गया है और लोकली भी नहीं दिया है, देन इन दैट केस इट विल रेज एन एरर. क्लियर?
Students, see here the next case, same variable name in local scope as well as in global scope. That means you are using the same name. जो वेरिएबल आप देंगे वही ग्लोबली भी वही नाम से डिफाइन किया गया है और लोकली भी वही नाम से वेरिएबल अवेलेबल है. सी द एग्जाम्पल, द फंक्शन इज स्टेट 1. ये प्रोग्राम जब अब आप एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट. यहाँ पर देखिए, आपको पता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है. सबसे पहला लाइन कौन सा है, फंक्शन डेफिनेशन है. फंक्शन डेफिनेशन, इट विल बी रेड बट इट विल बी इग्नोर्ड अंटिल इट इज कॉल्ड. सो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले लाइन में, द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज टाइगर्स इक्वल्स टू 95. यू आर गिविंग अ वेरिएबल टाइगर्स, द वैल्यू इज 95. सो हियर टाइगर इज ग्लोबल. यहाँ पर देखिए जो टाइगर्स जो वेरिएबल है वो ग्लोबली डिफाइन किया गया है, उसका वैल्यू क्या है 95. तो जब आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट टाइगर्स, व्हाट इज द ग्लोबल वैल्यू ऑफ टाइगर, दैट इज 95. सो यू विल गेट 95. क्लियर. After this, next statement is state 1. Here you are calling the function state 1. यहाँ पर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. फंक्शन कॉल कर रहे हैं मीन्स कंट्रोल विल गो हियर. कंट्रोल यहाँ पर जंप होगा, देन इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन. स्टेट 1 एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर देखिए अगेन टाइगर्स इक्वल्स टू 15. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपने टाइगर्स दिया था. लोकली स्टेट 1 के अंदर भी आपने वेरिएबल दिया हुआ है टाइगर. दैट मीन्स ग्लोबल एंड लोकल बोथ हैव द सेम नेम. इस तरह केसेस भी हो सकते हैं जिसमें ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल दोनों का नाम सेम होगा. सो हियर लोकली द वैल्यू ऑफ टाइगर्स इज 15. टाइगर्स में क्या वैल्यू दिया हुआ है 15. सो इफ यू आर प्रिंटिंग दिस वेरिएबल टाइगर्स, सो आपको आउटपुट क्या मिलेगा. आपको पता है ग्लोबली 95 था, बट इस फंक्शन को जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो फंक्शन के अंदर लोकली इट इज असाइंड अ वैल्यू 15. So while printing the variable tigers, it will be printed as 15. That means when global and local have the same name, then local variable, the value present in the local variable, it will replace the global value. That means it will hide the global value. Local value को preference पहले दिया जाएगा, it will hide the global value. Then after executing this statement, the control again will come here. This statement is executed. The last one is print tigers. Now you can see tigers globally यहाँ पर वैल्यू, लोकली यहाँ पर वैल्यू था 15. So आपको पता है जो लोकल जो भी वेरिएबल होता है, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. सो ग्लोबली यहाँ पर देखिए टाइगर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 95. सो अगेन 95 विल कम. क्लियर. So in this way, global and local variables can be given with the same name, but the main thing you have to remember, local value will hide the global value. Students, whatever topics we have seen, that is all about functions. So ये chapter आपका complete हो चुका है functions. अब हम देखेंगे इस chapter में किस प्रकार से question पूछा जाता है CBSE में. We'll see one example. Suppose this is the question. नॉर्मली इस चैप्टर से क्या होता है, आउटपुट क्वेश्चन पूछा जाता है. वन प्रोग्राम विल बी देयर, यू हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम, जिसमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है. हियर यू कैन सी इफ दिस इज द क्वेश्चन, यू आर आस्क्ड व्हाट विल दिस कोड व्हाट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू प्रिंट. ये प्रोग्राम में आपको आउटपुट क्या मिलेगा. सो आपको देखना है, आपको पता है एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है प्रोग्राम का. नॉर्मली फर्स्ट लाइन the Python interpreter will read the first line, but it will ignore until it is called. Then it will go here, again it will be read but it will be ignored. Then this is the first line of the main program. ये आपका पहला लाइन है जिसमें आपने लिखा है a equals to add em. You're calling the function add em. You are passing the arguments 6, 16 and 26. That will be passed to the parameter x, y and z respectively. x में आपका 6 हो जाएगा, y में 16 and z में 26. Clear? So while executing this statement, the control will go here. कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, इस फंक्शन के बॉडी को एग्जीक्यूट करना होगा. यहाँ पर देखिए फंक्शन बॉडी में only one statement is there, print x plus y plus z. That means all the three values will be added and it will be printed. But you see this function, it has parameters, it is doing some calculation, but it is not returning any
वैल्यू। यहाँ पर देखिए रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, दैट मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। सो व्हेन द कंट्रोल अगेन कम्स हियर, जब कंट्रोल वापस ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जब कंट्रोल वापस यहाँ पर आएगा तो आपको पता है इस फंक्शन का जो भी वैल्यू रिटर्न होता है दैट शुड बी असाइन टू द वेरिएबल ए। लेकिन यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, दैट मीन्स नथिंग इज रिटर्न। सो हियर इन द ए नथिंग इज देयर, सो नन इज देयर। देन सी द नेक्स्ट लाइन, b इक्वल्स टू प्रोडक्ट। यहाँ पर आप कॉल कर रहे हैं प्रोडक्ट फंक्शन को, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं 2, 3, 6, दैट विल बी पास टू द पैरामीटर xyz। तो यहाँ पर जब कंट्रोल आएगा तो कंट्रोल कहाँ पर जंप हो जाएगा, इस फंक्शन में जहाँ पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन प्रोडक्ट। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट है, दैट मीन्स जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर देखिए आप डायरेक्टली कैलकुलेशन को रिटर्न स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ है, सेपरेटली कैलकुलेट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड। तो जो वैल्यूज यहाँ पर पास होके पैरामीटर्स को दिया गया है दैट विल बी मल्टीप्लाइड, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 3 is 6, 6 6 is 36। दैट मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन प्रोडक्ट, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू 36। ये आपको समझना है, ये फंक्शन को जब कॉल किया गया था यहाँ पर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता था, इसीलिए हम मान के चलते हैं नथिंग इज रिटर्न, सो ए में नन है। लेकिन बी में देखिए वैल्यू रिटर्न हो रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट इज देयर इन द फंक्शन, जहाँ पर क्या होता है तीनों जो पैरामीटर्स है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और वो वैल्यू को पास किया जा रहा है, दैट मीन 36। सो बी में आपका क्या हो जाएगा 36। सो द लास्ट लाइन, प्रिंट ए कॉमा बी। अब आप प्रिंट करें ए और बी में, ए आपको पता है ए में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज रिटर्न, सो नन विल बी प्रिंटेड एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 36। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वन प्रोग्राम विल बी देयर, यू हैव टू फाइंड द आउटपुट। सो स्टूडेंट्स, hope whatever we have seen today that is clear to you. In the next class we will try to solve some more questions on functions.